हर हर महादेव। Namaste, Har Har Mahadev. How are you, Suresh ji? आई एम गुड मंजुला जी, हाउ आर यू? Yeah, good. Thank you. So I have few questions for you. I just want to know whether God has created this creation, that is the world or universe, or how did it actually come into existence? Is there any creator? Okay. uh, I would say yes, because whatever we see in this world, like this nature or the physical world or the consciousness, there are, if you talk about at a broader level, there are things which are visible and there are things, or there are some phenomena which are non-visible. Like consciousness is not visible, and emotional energies or emotional states are not visible with normal eyes. But if you talk about the physical reality, the things which are visible like forms and shapes, objective realities, these are visible things. So broadly, there are two categories of the states which exist in this universe. And I would say if there is a creation, the creation of non-visible things and the creation of visible things, then I would say, of course, there is a creator. And creator is first. Creator is already before the creation. Creation is a secondary, creation is a result, and creator is a cause. If there is a cause, there is a result. So actually, you asked a very nice question. I was watching a video a few days back. There is a person whose name is Mr. Prashant. He's quite popular on YouTube, and someone asked him that if there is any God, or is there anything or any energy, or is there any supreme being who created us? So whatever he said, that was not completely satisfactory to me. And according to him, I think people should take complete responsibility of their actions, which is, I would say, an ideal state. It is not completely practical. Got it. So if you say people that there is no one who created you, you are a creation of nature, and your intelligence is your responsibility. You should develop yourself, and you can take some example from Vedanta or Indian philosophies, Ramcharitmanas, Bhagavad, and Ashtavakra Gita, and other sacred books of Indian philosophy. So that's a good thing. But he denied that there is someone who created you. I think that was a very, I would say, that he, I don't know how did he say this statement, but I would say that there is someone, and that one is the supreme consciousness. That one is Lord Shiva, Lord Brahma, or Paramatma, I would say, who created everything. Because there is a creation, so there is a creator. And without, we cannot say that which form does he exist in, because he is in non he's in formless condition, and is in forms also. So there is a God. And if now, for example, if I talk about his video, Mr. Prashant, Mr. Prashant, or he Acharya Prashant, you can say. Now for example, अगर हम लोगों के सर पे से अगर भगवान का साया हटा देते हैं, लाइक ही सेड, कि कोई है नहीं जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी उत्पत्ति करी है, ऐसा कोई नहीं है। 1% के लिए अगर हम आपके सर पे से, या मेरे सर पे से, या हम आम लोगों के सर पे से अगर भगवान का साया हटा देते हैं, that means he is raising questions that there is no requirement of temples. There is no requirement of going to temple and worship your east and your devta or your lords. Got it. अगर ऐसे, अगर हम भगवान का साया लोगों के सर पे से हटा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समाज से कह देते हैं, या समाज बिना इन मान्यताओं के, without these beliefs, how will the society survive? Because there is no God now. Got it. तो अगर हमारे पास अगर गॉड नहीं है, गॉड का साया हमारे सर पे नहीं है, सो टेम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा सवाल एक ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको वेदांत पढ़ना नहीं आता, जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती,
एंड इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो ऐसे वो कौन से लोग होंगे जो वेदों को पढ़ के खुद अपना नॉलेज हासिल करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे अनपढ़ हैं हिंदुस्तान में, और जो पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो मेरा यही कहना है कि जो लोग बेचारे वेद नहीं पढ़ सकते, जो भागवत नहीं पढ़ सकते, ठीक है, या जिनके पास पढ़ने का समय नहीं है, तो उन लोगों के तो सर पे से, उन लोगों के ऊपर से तो भगवान का साया पूरी तरह हट गया, अकॉर्डिंग टू व्हाट मिस्टर प्रशांत सेड। और अगर जब भगवान अगर फॉर्मलेस नहीं है और फॉर्म में भी नहीं है, तो फिर मंदिरों की बड़े बड़े जो जो हमारे पवित्र स्थान हैं, जैसे जो जितने भी 12 शिवलिंग हैं, जो हमारे जितने भी जो हमारे जो जितने भी जगहें हैं, मतलब पवित्र जगहें हैं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पॉपुलेशन का है, अगर उनके पास भगवान नहीं है कहीं जाने के लिए, कोई जगह नहीं है पूजा करने के लिए, तो ये सारी सारी जगहें हटा देनी चाहिए। सो आई थिंक देर इज समवन, if there is a consciousness, so there is a supreme consciousness, if there is a reality, the relative reality or absolute reality, so there is something which is absolute, which is ultimate, which is beyond human and intelligence and human wisdom. So that's what I would say. And एक एक चीज और आप सोचो, मंजुला जी, इनफैक्ट अगर आप क्रिएशन भी देखें, दिस इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, there is a creation in everything. You pick up the animal world, you pick up the the human world, you pick up the vegetable world, so different kind of creation is there. इतनी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन, इतनी जो मतलब पेचीदा, और जो इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स जो क्रिएशन है, वो किसी नॉर्मल क्रिएटर की बस की चीज नहीं है। सो देर इज समथिंग, कोई है जो इस क्रिएशन को डिजाइन करता है, कोई है जो इस क्रिएशन को बिल्कुल ऑपरेट करता है, कोई है जो इस क्रिएशन को एक लिमिट के बाद उसके एंड तक पहुंचाता है, और कोई है जो इस क्रिएशन की जो क्रिएशन है उसका एक मकसद भी है। हर एक क्रिएशन जो है, जो क्रिएटर ने करी है, जो परमात्मा ने जो मतलब जो इटर्निटी है, जो उसने क्रिएशन जो बनाई है, वो क्रिएशन कहीं ना कहीं फिट बैठती है इस पूरे ब्रह्मांड में, अपने उस काम को फिनिश करने के लिए। बिना पेड़ों के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। बिना जल के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। आपका और मेरी चेतना का जो स्तर है, उसका उसके अंदर जो बढ़ोतरी होती है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है, उसका उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी का, ठीक है। बिना ऑब्जेक्टिव रियलिटी के हम भी कुछ नहीं है। अगर आप कल सुबह उठो, अपनी आंखें खोलो, और सारी दुनिया में सिर्फ अंधेरा छाया और पूरा वैक्यूम हो, पूरा स्पेस हो, तो आपकी चेतना का विस्तार ही नहीं होगा, आपकी चेतना का विकास ही नहीं होगा। क्योंकि चेतना तो सिर्फ एक चेतना होता क्या है कि चेतना एक बटर मक्खन की तरह काम करती है। जो एक बटर होता है ना, बटर का जो पीस होता है, स्लाइस होता है, चेतना बिल्कुल उसकी तरह काम करती है। और ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक चक्कू की तरह काम करती है, ठीक है। जब चक्कू, जो कि हार्ड रियलिटी है, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और जो चेतना है जो कि बटर की तरह, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तभी कांटेक्ट में आने के अंदर ही, उस आने के बाद ही एक कंडीशन तैयार होती है। तो बिना ऑब्जेक्टिव रियलिटी के कॉन्शियसनेस काम नहीं करेगी, और बिना कॉन्शियसनेस के ऑब्जेक्टिव रियलिटी समझ नहीं आएगी। तो इस दुनिया में जो क्रिएटर है, जिसकी जो क्रिएशन है, वो बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही किसी उद्देश्य के साथ बनाई गई है। एंड देर इज ए क्रिएटर, एंड दैट क्रिएटर इज समवन जो आम इंसान के समझ नहीं आता, लेकिन एक लेवल के बाद जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, जब आत्मज्ञानी बनते हैं, जब आत्मा का ज्ञान होता है, तो वो जो क्रिएटर है वो समझने आता है। ऐसे हर किसी की बस की नहीं है। सो देर इज ए क्रिएटर, and that creator is supreme consciousness, and that creator is eternity. Yes, it should be obvious because when the body has been designed in such a way that we take the oxygen inside and carbon dioxide comes out and blood has been created in the body, it gets circulated. All this wonderful process, if it has to happen, some creator has to create this. Nothing, no, like that supreme power only can create such a wonderful body which functions, which does everything by itself. So there is no point in saying that there is no creator. See, yeah, and there are some people, like I said, like Mr. Prashant, जो आचार्य प्रशांत है,
ठीक है, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फेम पाने के लिए, कुछ पॉपुलैरिटी पाने के लिए या लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आई एम नॉट रेजिंग क्वेश्चन ऑन हिज इंटेलिजेंस, बट जो भी उन्होंने बोला है, आई थिंक ही टुक इट वेरी सिंपली, और उन्होंने बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई करके इसको कह दिया। सो ही साउंडेड मोर ऑफ ए काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर रादर देन समवन हु स्टडीड वेदांता। वेदांता को पढ़ने वाला व्यक्ति, जो जिस वेदांता का वो रेफरेंस लेते हैं, वेदांत अद्वैत वेदांता, जगत गुरु आर्य शंकराचार्य ने की जो फिलोसफी है, जो अद्वैता वेदांता है, अद्वैता मीन्स वन, द्वैता मीन्स टू, अद्वैता मीन्स वन। सो जिस वन का रेफरेंस लेके, जिस एकमात्र परमात्मा का रेफरेंस लेके वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी मीन्स जहां पे कोई डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। डुअलिटी क्या है? द सब्जेक्टिव रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। Your consciousness is your subjective reality, and the reality, the hard reality is objective reality. तो होता क्या है कि अद्वैता की फिलॉसफी यही है कि इफ यू रियलाइज योर सेल्फ, देर इज नॉन डुअल स्टेट। नॉन डुअल, आप जब नॉन डुअलिटी स्टेट पे पहुंचते हैं, तो आपको औरत, मर्द और आपको जो दूसरी चीजें हैं वो सब दिखाई नहीं देती हैं। तो होता क्या है कि अद्वैता की जो फिलॉसफी वो यही है। दैट्स व्हाट आई वुड से, दैट कि हर चीज का एक क्रिएशन है और हर चीज का एक क्रिएटर भी है। अल्टीमेटली एक जो क्रिएटर है वो लॉर्ड परमात्मा है, वो इटर्निटी है, और मैं यही कहना चाहूंगा।